بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی اسکول ٹیچر تھی۔ وہ اکثر گھر دیر سے آتی تھی۔ میں ایک روز اچانک اپنی بیوی سے ملنے اسکول چلا گیا۔ جب میں پرنسپل کے آفس میں داخل ہوا تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی اپنے پرنسپل کے ساتھ ہر گلی کے کونے پر آج کل پرائیویٹ اسکول کے نام سے ایک چھوٹی سی بلڈنگ بنی ہوتی ہے، اور میرا ماننا تھا کہ وہاں عموماً تعلیم تو معیاری ہوتی نہیں ہے، لیکن وہاں کا ماحول ضرور نامناسب ہوتا ہے۔ میری بیوی بھی میرے گھر سے کچھ دور واقع ایسے ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کرتی تھی، اور اپنی نوکری سے بہت دیر سے گھر لوٹ کر آتی تھی، اور میرے دل میں اس کو لے کر عجیب سے شک پیدا ہونے لگے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ چھٹی کے 2 گھنٹے بعد بھی اسکول میں ایسا کون سا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے میری بیوی کو اتنا وقت لگ جاتا ہے، اور پھر واپس آنے کے بعد بھی وہ کافی سارا اسکول کا کام لے کر ساتھ آتی ہے۔ میری بیوی کی تمام تر سرگرمیاں مجھے کافی عجیب سی لگتی تھیں، خاص کر کے جب بھی وہ کسی سے بات کرتی تو مجھے دیکھتے ہی خاموش ہو جاتی تھی، وہ اس کے گھر والے ہوں یا پھر میری بہن۔ آج بھی میری بہن کو گھر آئے کافی دیر ہو چکی تھی، اور وہ بہت دیر سے میری بیوی کے ساتھ باورچی خانے میں کھڑی باتیں کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں باورچی خانے میں پانی پینے کے لیے گیا تو وہ دونوں ہی اچانک خاموش ہو گئے، اور یہ بات مجھے بہت عجیب سی لگی۔ میں پانی پی کر واپس لوٹ آیا اور وہ دونوں دوبارہ سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ان کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دونوں کیا بات کر رہی ہیں۔ ویسے تو نند اور بھابھی کا رشتہ بہت ہی خطرناک سمجھا جاتا ہے، لیکن میری بیوی اور بہن کے درمیان شاید زیادہ ہی دوستی ہو گئی تھی، اسی لیے وہ دونوں اکثر ہی راز و نیاز کرتی نظر آتی تھیں۔ اکثر ہی میری شادی شدہ بہن مونا ہمارے گھر آتی، اور وہ میری بیوی سے کسی نہ کسی کونے میں کھڑے ہو کر ایسے ہی بات کرتی۔ کئی دفعہ میں نے اپنی بہن سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوتی ہیں، لیکن میری بہن ہمیشہ مسکرا کر بات کو بدل دیتی اور مجھ سے کہتی کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور تم گھر میں رہ کر شکی ہوتے جا رہے ہو۔ اپنی بہن کے جانے کے بعد اپنی بیوی سے اس بارے میں بات کرتا تو وہ بھی گول مل سا جواب دے کر بات ختم کر دیتی۔ نہ جانے ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا تھا جس سے میں پوری طرح بے خبر تھا، یا پھر شاید میری بہن ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ سارا دن گھر میں رہنے کی وجہ سے میرے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات آتے رہتے تھے۔ ہماری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے، اور ان 3 مہینوں میں میری بیوی جمیلہ نے پوری طرح گھر کی ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ اسکول میں بھی پڑھاتی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے شادی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو نوکری پیشہ ہوگی، کیونکہ مجھ سے نوکری نہیں کی جاتی تھی۔ مجھے گھر بیٹھ کر روٹیاں توڑنے کی عادت ہو چکی تھی۔ میری بہن نے کئی مہینوں کی محنت کے بعد جمیلہ کو میرے لیے منتخب کر لیا۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس کے گھر والے بھی بہت اچھے لوگ تھے، لیکن ان لوگوں نے شادی کے لیے بس ایک ہی شرط رکھی تھی کہ وہ سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مستقل طور پر نوکری نہ کرنے کی وجہ سے میرے پاس بھی زیادہ پیسہ نہیں تھا، اس لیے میں نے ان کی اس شرط کو قبول کیا اور 4 لوگوں کی موجودگی میں جمیلہ کو دلہن بنا کر گھر لے آیا۔ شادی کے وقت میں نے کچھ دنوں کے لیے ایک جگہ ملازمت کر لی، اور پھر شادی کے 15 دن بعد ہی میں نے نوکری چھوڑ دی۔ شروع میں تو جمیلہ کو لگا کہ شاید میں نے ایسے ہی وقتی طور پر نوکری چھوڑی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں نوکری نہیں کروں گا بلکہ اسے ہی گھر چلانا ہوگا۔ مجبوراً اس نے دوبارہ سے اسکول کی نوکری شروع کر دی تھی۔ میں سارا دن آرام سے گھر پڑا رہتا، اور جمیلہ اسکول سے آنے کے بعد بھی بڑی پھرتی سے گھر کے سارے کام نپٹا دیتی۔ شروع میں اس نے کئی دفعہ مجھ پر نوکری کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن پھر وہ جان گئی کہ اس کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی میں نوکری نہیں کروں گا۔ اس نے مکمل طور پر اس معاملے میں خاموشی اختیار کر لی۔ کبھی کبھی مجھے اپنی بہن کی پسند پر بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ مجھ جیسے کام چور آدمی کے لیے میری بہن نے اتنی پڑھی لکھی اور سلیقہ مند لڑکی کیسے ڈھونڈ لی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ جمیلہ کے گھر والوں پر بھی حیرت ہوتی کہ انہوں نے اپنی اتنی خوبصورت بیٹی کیا سوچ کر میرے ساتھ رخصت کر دی تھی، اور شادی کے ان 3 مہینوں میں ایک دفعہ بھی ہمارے گھر میں نہیں جھانکا تھا کہ ان کی بیٹی میرے ساتھ خوش بھی ہے یا نہیں۔ میری بہن کی جمیلہ سے کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی آتی جمیلہ کے ساتھ کافی وقت گزارتی،
वो दोनों एक ही उम्र की थीं। वैसे भी मेरी बहन को बहुत ज़्यादा बातें बनाने की आदत थी, इसलिए जब भी वो घर आती मैं उन दोनों को छोड़कर दोस्तों में निकल जाता। इसलिए मैं इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि उन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत की नौयत क्या है। जमीला को स्कूल की नौकरी करते हुए ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि वो बहुत देर से स्कूल से वापस आने लगी। उसका मिजाज भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ रहने लगा। मेरे पूछने पर कहती कि स्कूल में काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसे देर हो जाती है। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये वक्त मज़ीद बढ़ गया और अब वो 2 के बजाय 4 बजे के करीब घर आने लगी थी। मैं जमीला का इंतज़ार करते करते परेशान हो जाता और फिर वो लौट कर घर आती। बहुत दफ़ा मैंने उस पर गुस्सा भी किया कि वो आगे से कहती कि वो नौकरी करती है, उसे स्कूल के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं ज़्यादा कुछ कहता तो वो बहुत ज़्यादा तल्ख हो जाती, नौकरी छोड़ने की बात करती और इसी बात पर मैं खामोश हो जाता, क्योंकि अगर वो नौकरी छोड़ देती तो हमारे घर का गुजारा कैसे चलता। उससे शादी करने का मकसद ही यही था कि वो हमेशा स्कूल में पढ़ाती रही थी और जमीला इसी बात का फ़ायदा उठाकर अपनी हर बात मुझसे मनवा लिया करती थी। जमीला खूब सज धज कर स्कूल जाती थी, ऐसा लगता ही नहीं था जैसे वो स्कूल पढ़ाने के लिए जा रही हो। कई दफ़ा मैंने उसे कहा कि इतना ज़्यादा भी तैयार होने की क्या ज़रूरत है, तो वो कहने लगी अभी उसकी नई नई शादी है और स्कूल में सभी टीचर्स ऐसे ही तैयार होकर आती हैं। मैं उसकी नौकरी के मामले में ज़्यादा बात नहीं करता था, मुझे तो आम खाने से मतलब था, पेड़ गिनकर क्या मिलता। जमीला की तनख्वाह से घर का अच्छा खासा गुजारा चल रहा था, लेकिन ये बात मुझे बहुत देर से पता चली कि हमारा गुजारा कैसे चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से जमीला की अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन वो स्कूल से इस कदर देर से आ रही थी कि अपनी अम्मी के घर जाने का उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। मैंने जमीला से कहा कि एक दिन की छुट्टी करके अपने घर चली जाओ, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन की छुट्टी से ऐसी भी कौन सी क़यामत आ जाएगी। 4 दिन और निकाल कर इतवार वाले रोज़ जमीला ने कहा कि आज मैं उसे उसकी अम्मी के घर ले चलूं, तो मैं फ़ौरन ही उसे वहाँ लेकर ले गया। वहाँ जाकर भी वो अपनी बहनों से न जाने धीमे लहजे में क्या बातें करने लगा जो मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन वहाँ जाकर भी वो अपनी बहनों से न जाने धीमे लहजे में क्या बातें करने लगी जो मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। आज मुझे उसकी इस आदत से सख्त कोफ्त महसूस हो रही थी। वो अपनी बहनों के साथ अलहदा कमरे में बंद हो गई थी और काफ़ी देर बाद जब वो बाहर निकल कर आई तो उसकी हालत बहुत अजीब सी हो रही थी। न चाहते हुए भी मुझे फ़िलहाल खामोश रहना पड़ा, क्योंकि इस वक्त मैं अपने ससुराल में मौजूद था। रात तक हम दोनों ही जमीला की अम्मी के पास रहे और फिर जब रात को घर लौटे तो मैंने गुस्से के आलम में जमीला से पूछा कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरे सामने नहीं हो सकती। मेरी बात सुनकर पहले तो जमीला के चेहरे का रंग उड़ गया और फिर वो कहने लगी कि बहनों की आपस की कुछ बातें होती हैं, आप जानकर क्या करेंगे। हर गुजरते दिन के साथ मैं जमीला को बदलते हुए देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत मजबूरी में मेरे साथ रह रही हो। मेरे दिल में भी जमीला के लिए अजीब से जज्बात पैदा होने लगे थे। इन 3 महीनों में हमारा रिश्ता बहुत ज़्यादा बदल गया था और मुझे यकीन था कि कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जिससे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन सच इस कदर भयानक होगा ये मैंने तस्वुर भी नहीं किया था। जब से मेरी शादी हुई थी मेरे दोस्त मेरी किस्मत पर रश करने लगे। वो कहते कि तुझे तो बहुत ही सीधी और कामकाज करने वाली लड़की मिल गई है, वरना आज के दौर में हर लड़कियां आते ही झगड़ा फसाद शुरू कर देती हैं। एक दिन मेरा दोस्त असलम अचानक ही अपनी बीवी के साथ मेरे घर मिलने चला आया। उनकी शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। हमारा घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, 2 ही कमरे थे, एक हमारा बेडरूम, दूसरा हमने लाउंज के तौर पर सेट कर रखा था और उसी में ही बावर्ची खाना बना हुआ था। असलम मेरे साथ लाउंज में बैठ गया और उसकी बीवी जमीला के साथ मेरे बेडरूम में चली गई। लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब जमीला ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। ये बात मेरे लिए बहुत ही अजीब थी। मेरी दोस्त की बीवी से ये उसकी पहली मुलाकात थी, तो फिर दोनों कमरे का दरवाज़ा बंद करके क्या कर रही थी। जमीला अगर पर्दा डाल देती तो मुझे शायद अजीब महसूस ना होता, लेकिन उसका पूरी तरह से दरवाज़ा बंद कर देना मेरे लिए कुछ हैरानकुन था। जबकि जमीला असलम से पर्दा भी नहीं करती थी। वो दोनों तकरीबन आधे घंटे तक कमरे के अंदर बंद रही थीं और जब बाहर निकल कर आईं तो दोनों की ही शक्लें कुछ अजीब सी लग रही थीं और दोनों बावर्ची खाने में जाकर खाने पीने का कुछ इंतज़ाम करने लगीं। असलम ने तो शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मैं जमीला को बहुत गौर से देख रहा था, क्योंकि अब यह बात मेरे लिए एक मुअम्मा बन गई थी। जमीला आखिर औरतों के साथ ऐसी कौन सी राज़ो न्याज की बातें करती थी
जिसके लिए उसे तन्हाई की ज़रूरत पड़ती थी। जमीला की भाभी ने हमारी शादी वाले दिन मुस्कुराते हुए मुझसे एक बात कही थी जो आज मेरे कानों में गूंज रही थी कि तुम इसे रुखसत करवा के ले जाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि किसी मर्द के साथ इसका गुजारा नहीं हो सकता। उस वक्त मुझे जमीला की भाभी की ये बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन मेरी बहन ने ये कहकर मुझे खामोश करवा दिया था कि जमीला और उसकी भाभी के आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करके झगड़ा खड़ा करना चाहती हैं। और शादी के बाद मैंने यही देखा था कि जमीला की भाभी अपने शौहर के साथ अलग घर में रहती थी और जमीला की छोटी दोनों बहनें अपनी बीमार माँ के साथ अलग घर में। इसीलिए मुझे लगा था कि मेरी बहन ने शायद ठीक ही कहा था, लेकिन आज ना जाने क्यों जमीला की भाभी की बात मेरे कानों में गूंज उठी थी। असलम और उसकी बीवी तो खाने के बाद वापस चले गए थे, लेकिन मेरे दिमाग में सवालों की एक जंग छिड़ गई थी। मैंने जमीला से साफ साफ लफ्ज़ों में पूछा था कि असलम की बीवी के साथ कमरे का दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी। मेरी बात सुनकर जमीला हत्थे से उखड़ के कहने लगी, खुद तो आप कुछ करते नहीं हैं और मुझ पर ऐसे नज़र रखते हैं जैसे मैं किसी मर्द के साथ हूँ। असलम की बीवी एक औरत है और हम दोनों एक साथ कमरे में अगर बैठे बातें कर रहे हैं, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। लेकिन जमीला की आवाज़ और अंदाज इस बात की गवाही दे रहे थे कि कमरे के अंदर होने वाली बातें कुछ और ही थीं, जिन्हें छुपाने की खातिर जमीला इस कदर चीख चिल्लाकर मुझे खामोश करवाना चाहती थी। अगले दिन जमीला स्कूल के लिए रवाना हुई तो बिना कुछ सोचे समझे मैं उसके भाई के घर चला गया। मैं जानना चाहता था कि आखिर जमीला के पास औरतों के साथ बंद कमरे में करने के लिए कौन सी ऐसी बातें थी जो मैं नहीं जान सकता था। जमीला का भाई नौकरी पर गया हुआ था। उसकी भाभी ने ही दरवाज़ा खोला और मुझे दरवाजे पे खड़ा देखकर हैरान रह गई। फिर खुद ही उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठा दिया और खुद मेरे आगे बैठ गई। मैं यहाँ तक तो आ गया था, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जमीला के बारे में उनसे क्या सवाल करूं। मुझे तसब्सुब का शिकार देखकर जमीला की भाभी कहने लगी कि आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। उनकी बात ने मुझे थोड़ा हौसला दिया तो मैंने कहा कि जो भी सच है आप मुझे खुद ही बता दें। जमीला की भाभी मुस्कुराकर कहने लगी, अगर मैं कुछ कहूँगी भी तो दुनिया समझेगी कि मैंने अपनी नंद का घर खुद उजाड़ा है, लेकिन सच तो यही है कि जमीला जैसी औरतें घर बसाने के लायक ही नहीं होती। बेहतर यह है आप खुद ही जमीला का सच तलाश करें और फिर फैसला करें। आप दोनों के दरमियान पढ़कर मैं अपना और अपने शौहर का रिश्ता ख़राब नहीं कर सकती। जमीला की भाभी की बातों ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया था कि वाकई मेरी बीवी एक अच्छी औरत नहीं है, लेकिन ना ही मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत था और ना ही उसकी भाभी ने अपना मुंह खोला था। मैं घर वापस आ गया और मैंने जमीला की सारे सामान की तलाशी ली, लेकिन मुझे कुछ ना मिला जिसके बारे में मैं उसके जान पाता। थोड़ी देर खामोशी से जमीला स्कूल से वापस आ गई और मामूल के मुताबिक वो घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। अब तो वो मुझसे नौकरी की बात ही नहीं करती थी। मैं भी पूरी तरह खामोश हो गया और उसकी हर हरकत का जायज़ा लेने लगा। अगले दिन फिर जमीला को स्कूल से आने में कुछ ज़्यादा ही देर हुई तो मैं उसे देखने के लिए स्कूल चला गया। जमीला की भाभी की बातों ने जल्दी में तेल का काम किया था। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, इसलिए मुझे ज़्यादा गुस्सा आ गया था। इत्तेफाक से स्कूल के दरवाजे पर चौकीदार मौजूद नहीं था, इसलिए मैं आसानी से स्कूल के अंदर दाखिल हो गया। सामने ही प्रिंसिपल का ऑफिस बना हुआ था। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि सोफे पर मेरी बीवी प्रिंसिपल के साथ बैठी थी और जो कुछ उनके दरमियान चल रहा था वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। जमीला ने भी मुझे देख लिया था और लपक कर मेरे पास आई, लेकिन मेरा गुस्सा अपनी इंतहा को पहुंच गया था। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ जमीला के चेहरे पर रसीद किया। मैं कामचोर ज़रूर था, लेकिन बेगैरत नहीं था जो अपनी बीवी को इस बेवफाई को बर्दाश्त करता। जमीला रोते हुए मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं सुनना था, क्योंकि पिछले कई महीनों से मैंने बहुत कुछ सुना और देखा था जो पहले वाज़ेह नहीं था, लेकिन अब पूरी तरह खुलकर सामने आ गया था। प्रिंसिपल ने आकर जमीला को मेरे कहर से बचा लिया था और जमीला पर तशद्दुद करने के इल्ज़ाम में मुझे जेल भेजने की धमकी दी थी। लेकिन अब मैं इन धमकियों में आने वाला नहीं था, क्योंकि अब मैं खुद जमीला से मज़ीद ताल्लुक़ नहीं रख सकता था। ये सोच कर ही मेरा खून खोल रहा था कि मुझे धोखा देने में मेरी बहन भी पेश थी।
मेरी बहन को शादी से पहले ही जमीला का सारा कच्चा छट्टा मालूम था, लेकिन फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो मेरी और जमीला की शादी करवाना चाहती थी। आज मुझे पूरी तरह समझ आ गया था कि मेरी बहन और जमीला के दरमियान क्या बात होती है और जमीला की अपनी बहनों से बंद कमरे में क्या बातें होती थीं। लेकिन असलम की बीवी भी इस सब में शामिल हो जाएगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। जमीला मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रिंसिपल ने उसे ये कहकर मेरे पीछे आने से रोक दिया था कि मुझ जैसे आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर ये है कि वो हमेशा के लिए इस रिश्ते को ख़त्म कर दे। प्रिंसिपल उसे बहुत मोहब्बत से समझा रही थी कि तुम्हारे पास आगे बढ़ने के कई रास्ते हैं और ज़रूरी नहीं कि तुम अपने शौहर जैसे कामचोर शख्स के साथ गुजारा करो। मैं जमीला को वहीं छोड़कर घर वापस आ गया और काफ़ी देर बाद वो मेरे पीछे घर आई और खुद ही मेरे कदमों में बैठ गई। इतनी देर में मेरा गुस्सा कुछ ठंडा हो गया था, इसलिए मैं खामोश बैठा हुआ था। जब जमीला ने अपनी पूरी सच्चाई मेरे आगे रखी, उसे सुनकर मैं हैरान रह गया। प्रिंसिपल ऑफिस में जो कुछ मैंने सुना था वो अधूरा सच था, और आधा अधूरा सच हमेशा ही खतरनाक होता है। पूरा सच तो अब जमीला ने मुझे सुनाया था। जमीला एक इंटर पास लड़की थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इसीलिए उसके लिए पढ़े लिखे और अच्छे इंसान का रिश्ता आ गया। जमीला के घर में उसका भाई बहुत कमाने वाला शख्स था जो बहुत अच्छी नौकरी करता था, और जमीला अपनी टीचिंग के ज़रिए उसका साथ निभा रही थी। जमीला के भाई की नौकरी बहुत अच्छी थी, इसलिए घर के हालात काफ़ी बेहतर थे। उसके भाई ने यही सब देखते हुए जमीला का रिश्ता कर दिया और उसकी धूमधाम से शादी कर दी। शादी के शुरू में तो जमीला अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी, लेकिन फिर उनकी खुशियों को जमीला की नंद की नज़र खा गई। जमीला की नंद को जमीला का भाई पसंद आ गया था, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा कमाने वाला और खूबरू नौजवान था। जमीला के शौहर ने अपनी बहन की पसंद को देखते हुए जमीला पर दबाव डाला और अपनी बहन की शादी जमीला के भाई से करवा दी। यूँ जमीला के पहले शौहर की बहन उसकी भाभी बन गई। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि जमीला की भाभी यानी नन ने उसके घर में इस कदर आग लगाई कि उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी और जमीला का बसा बसाया घर उजड़ गया। जमीला की भाभी अपनी मक्कारी से उसके भाई को लेकर अलग हो गई और जमीला के घर के हालात ख़राब हो गए। मजबूरन जमीला को दोबारा से टीचिंग करके अपना घर चलाना पड़ा। जमीला की माँ अपनी जवान बेटी को उजड़ा हुआ देखकर मज़ीद बीमार हो गई थी। मेरी बहन अपने किसी जानने वाले के तवस्सुत से जमीला के लिए रिश्ता लेकर गई और उसे जमीला बहुत पसंद आई। जमीला घर के काम काज में भी अच्छी तो थी और नौकरी पेशा भी थी। मेरी बहन को अच्छी तरह मालूम था कि मैं कामचोर हूँ और नौकरी नहीं कर सकता, इसलिए उसने जमीला के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। लेकिन साथ ही ये शर्त भी रखी कि मुझे नहीं पता चलना चाहिए कि जमीला पहले से शादीशुदा और तलाक याफ्ता है। मेरी बहन ने जमीला के घर वालों को सादगी से रुखसती का मशवरा दिया। उनके हालात घर के वैसे भी ठीक नहीं थे, इसलिए वो लोग भी राज़ी हो गए। जमीला को शादी वाले दिन ये बात बताई गई कि मुझे उसकी पहली तलाक का इल्म नहीं है। ये बात जमीला को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने शादी के पहले ही दिन से मेरी बहन पर दबाव डालना शुरू किया कि वो मुझे उसकी शादी और तलाक के बारे में बता दें। उन दोनों के दरमियान हर मुलाकात में दबे लफ्ज़ों में यही बात होती थी। जमीला मोना को कहती कि वो मुझे हकीकत बताना चाहती हैं और मोना उसे ये कहकर रोक देती कि मेरा भाई फिर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं रखेगा। हर गुजरते दिन के साथ जमीला को यह एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं वो मुझे धोखा दे रही है, इसीलिए वो तल्ख होती जा रही थी। वो अपने घर जाती तो अपनी बहनों के साथ बैठकर यही बात करती कि वो मुझसे अपना सच छुपाकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, और जब भी अपनी बहनों के कमरे से बाहर निकलती उसकी आंखें सूजी हुई और चेहरा सुर्ख नजर आया करता था। जमीला कहने लगी कि वो मेरी काम चोरी से भी तंग आ गई थी, क्योंकि उसकी तनख्वाह से घर चलाना बहुत मुश्किल था और उसके प्रिंसिपल और उसके हालात से वाकिफ़ होने की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा माली मदद कर दिया करती थी। इसीलिए हमारे घर के हालात कुछ बेहतर चल रहे थे। स्कूल की नौकरी के साथ घर संभालना एक मुश्किल काम था और वो चाहती थी कि मैं भी उसके साथ नौकरी करूं। वो प्रिंसिपल के साथ ऑफिस में देर तक बैठकर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करती थी और उनकी मदद करवाया करती थी, क्योंकि वो भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। जमीला की भाभी ने पहली तलाक करवा कर भी चैन नहीं लिया था और वो चाहती थी कि दोबारा भी उसका घर उजड़ जाए, इसलिए जानबूझकर वो मेरे दिमाग में शक डालने के लिए ऐसे बातें करती थी।
असलम की बीवी भी जमीला की एक पुरानी जानने वाली निकली थी और उसे भी जमीला की तलाक का इल्म था। इसलिए जमीला ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसे भी सख्ती से ताकीद की थी कि वो अपने शौहर या मेरे आगे उसकी पहली शादी का जिक्र ना करे। जिस वक्त मैं प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचा था, जमीला की प्रिंसिपल उससे कह रही थी कि अपने शौहर से तलाक ले लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दूंगी। उस वक्त प्रिंसिपल की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे वो मेरी बीवी के साथ अपने किसी ज़ाती ताल्लुक़ की बात कर रही है और उसे मुझसे तलाक का मशवरा दे रही है। मैं यही समझता आया था कि मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा औरतों में दिलचस्पी लेती है, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सच इस कदर मुख्तलिफ होगा। दरअसल उसकी प्रिंसिपल इस बात से वाकिफ़ थी कि मैं कामचोर हूँ, इसलिए जमीला टीचिंग करती है और इस बात के ख़िलाफ़ थी कि मर्द घर बैठ जाए और औरत नौकरी करे। वो अक्सर जमीला को ये समझाती थी कि अगर मर्द अपनी जिम्मेदारियाँ उठाने के काबिल नहीं तो फिर ऐसे मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारने की भी कोई वजह नहीं। जमीला कह रही थी कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है और मेरे बगैर नहीं रहना चाहती। मुझे भी जमीला से गुजरे 4 महीनों में पूरी तरह मोहब्बत हो गई थी और उसका सच जानकर मुझे उससे नफ़रत होने के बजाय हमदर्दी महसूस हो रही थी, क्योंकि वाकई वो मजलूम थी। मैंने जमीला से वादा कर लिया था कि अब मैं नौकरी करूँगा और कभी उसे इस बात को लेकर शर्मिंदा नहीं करूँगा कि उसकी मुझसे पहले कहीं शादी हुई है। मुझे पहली दफ़ा अपनी गलतियों का एहसास हुआ था। मुझ जैसे इस माशरे में न जाने कितने मर्द हैं जो घर बैठकर अपनी बीवी पर शक करने का काम करते हैं और उनकी बीवियां कमाने के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी उठा रही होती हैं। अपनी बीवियों के साथ मोहब्बत और रहम का सलूक करें, क्योंकि वो उसी की मुस्तहिक हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।